नहीं, Wow, Anam, you're looking like a dog. Bismillahirrahmanirrahim. Madam Nasma, have you joined? Assalamu alaikum ji sir. Okay, madam. I am making you co-host. जी मैडम, मैंने आपको पोस्ट बना दिया। जी जी। अच्छा मैडम, मैंने एक बात ये कहनी है कि सब कैंडिडेट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो जो केस एज ए हॉट सीट पे आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप हैंड ऑलरेडी रेज कर लें, ताकि एक तरतीब से मैं आप लोगों को बुलाता रहूं। और वो टाइम जो है ना 20 से 30 सेकंड जो कि हम देखते रहते हैं कि कौन अब इस केस को ले, वो हमारे बच जाएंगे। तो 3-4 केसेस हम एक्स्ट्रा देख पाएंगे ऐसे। तो प्लीज एक हैंड रेज कर लें ताकि मुझे पता हो कि भी ये मैंने इनको बुला लेना है और आप लोग फिर अनम्यूट करके आप शुरू हो जाए। ठीक है, केस को देख के ना आप लोग एंटर हो। तो चले मैडम, फिर शुरू करते हैं। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम 1 मिनट के बाद स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके मैडम।
Sir, I think we should start now. Yes, ma'am. Yes, Dr. Aisha Star, madam, first turn आपकी है. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम ट्यूमर्स ऑफ लंग डिस्कस करेंगे जिसमें ज्यादातर मेलिग्नेंट हैं और कुछ जो है वो इनिशियल के केसेस मैंने बिनाइन के रखे हुए हैं. तो कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं बताऊंगी, बाकी ज्यादातर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी. ठीक है. फर्स्ट कैंडिडेट. Assalamualaikum, madam. I'm provided with the chest X-ray frontal projection of mature skeleton, in which I can see there is a well-defined soft tissue density is noted in the left mid zone of the lung, also in occupying the left lower zone of the lung. As this density is doesn't have a broad base mass, and it has the lateral wall is not as much clear. So this is not any mediastinal mass. It is most likely any intrapulmonary mass. So after deciding whether it is intrapulmonary mediastinal, this is intrapulmonary mass, and this mass has I cannot see any cavitation or any calcification in it, though it has a somewhat speculated margin. I cannot see the any rib erosion adjacent erosion to adjacent ribs adjacent to this lesion. However, I can see there's a the left hilum appears also bulky, and while the apices are seen clear, there's no retrocardiac opacity, there's no abnormality beneath the under the hemidiaphragm. Both CP angles are acute, so no pleural effusion, and the visualized right lung field appears normal, and visualized skeleton also appears normal. No erosion, no fracture, no sclerotic or lytic lesion seen. No sign of any emergency pneumothorax or emphysema. So concluding my finding, this looks like a solitary mass, and I can narrow down my diagnosis asking the history of this solitary pulmonary mass. If the patient has any history of any tuberculosis, because this is a wide consolidation patch, so this is a consolidation opacity. So asking about the history of tuberculosis. And But you said there is no air bronchogram. Then how consolidation on the top? You said no air bronchograms are visualized. So how consolidation at the top? And no, you said speculated margins. It has a speculated margin, soft tissue density. So first of all, I want to conclusion the diagnosis is solitary mass, pulmonary mass. So asking about the patient about history, whether he's a smoker or not, or whether he has previous X-rays. So to comparison the time period of that interval for that opacity, has it increased in size between 30 to 400 days. So if that is get increases, because margins are speculated. So okay, so you will proceed with contrast enhanced CT chest. Contrast enhanced CT for this. Okay, good, very well described. Few things I would like to add. You said very good. Okay, speculated margins. Then I mentioned your first differential as the lesion is probably seems to be locally aggressive or seems to be malignant. Whenever commenting on any lung lesion, you should also describe first you should describe its shape, then its margins. ठीक है, जैसे आपने बताया कि lateral margin ठीक है, clear नहीं है, outline भी fuzzy है, very well described नहीं है, ठीक है. फिर हार्ट के साथ भी उसको अबट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक इंटरफेस देखा जा सकता है. एक चीज आपने मेंशन नहीं की कि एक्यूट एंगल बना रहा है लंग पेरेन्काइमा के साथ. हाँ, that is why intrapulmonary. I have said it is not. एक और चीज, ठीक है, जब भी आपने लंग किसी लीजन को डिस्क्राइब करना है तो पेशेंट की मसल बिल्ट जरूर देख लिया करें कि पेशेंट इमेसिएटेड है कि नहीं. Okay.
ये चीज आपको बहुत फेवर करेगी अगर आप मेलिग्नेंसी सोच रहे हैं, तो आपको अगर इमेसिएटेड पेशेंट है तो ये मेलिग्नेंसी या ट्यूबरक्लोसिस को फेवर कर सकता है ये चीज, ठीक है। ठीक। मसल मैस जरूर देख लिया करें, ठीक है। बाकी सब ठीक डिस्क्राइब किया आपने। सही। अच्छा, नेक्स्ट कुछ कैल्सिफिकेशंस के पैटर्न्स हैं जो लंग के अंदर हमें अगर कैल्सिफाइड एक लीजन देख रहे हैं, सॉलिटरी या मल्टीपल लीजन्स हैं। यूजुअली जो कैल्सिफिकेशन सॉलिटरी लीजन के अंदर है वो बिनाइनिटी को फेवर करती है। और बिनाइन के क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं आपके पास? डिफ्यूज हो सकता है, एक सेंट्रल हो सकती है कैल्सिफिकेशन, बाकी सराउंडिंग ल्यूसेंट लीजन, लैमिनेटेड अपीयरेंस या पॉपकॉर्न टाइप जैसे हेमाटोमा में होती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या हो सकती है कि अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रेनुलोमा पड़ा हुआ है या कोई ट्यूबरकुलस कैविटी पड़ी हुई है और उसके अंदर एक मैलिग्नेंट लीजन अराइज कर गया जिसने उस ट्यूबरकुलोमा को भी एनगल्फ कर लिया है, तो कैल्सिफिकेशन इन पैटर्न्स के साथ ऑल्सो हम इनको हम एग्रेसिव लीजन्स में भी इन पैटर्न्स को देख सकते हैं, ये एक्सेप्शंस है। लेकिन यूजुअली ये जो होता है ना पैटर्न्स ये वाले, ये बिनाइन को फेवर करते हैं। सही। अच्छा, और बाकी कैल्सिफिकेशंस जो हम कैल्सिफाइड लंग मेट्स में भी देख सकते हैं, बाकी हिस्टोप्लाज्मोसिस, इस तरह डिफरेंट बहुत सारी कंडीशंस है लंग कैल्सिफिकेशंस की, वाइड डिफरेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट। Pretense. जी कोई नेक्स्ट डिस्क्राइब जी करें जी इसको? जी 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 डॉक्टर इरम मैडम ये आप ले लें। डॉक्टर इरम। सर मैं ले डॉक्टर लूं? अंबर। जी जी आप ले लें मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर अंबर आप नेक्स्ट केस ले लीजिएगा, ये डॉक्टर इरम ले लेती है। चलें डॉक्टर इरम जी। I am provided with a CT chest, axial view, axial and the corneal slice, Both are showing there axial. is a okay axial slices. There is see there is well defined rounded soft tissue density lesion seen in the posterior segment of the right lower lobe. In the left-sided image, on the right, it shows no calcification in it, no air fluid level. Surrounding lung parenchyma appears normal. On the right-sided image, this mass is appears more dense ये with और है, speculated. जी ठीक। जी जी, ये और मैस है, ये लेफ्ट वाला और है। जी मैम, ये वाला डिस्क्राइब कर रही हूँ, राइट साइड वाला। जी this mass is dense, showing the speculated margins. However, surrounding lung parenchyma appears normal. On the left-sided image, this lesion shows benign features, while on the right side it shows the malignant features as the margins are speculated. margins, Probably, yes. जी जी, राइट वाला आप कह सकते हैं कि सब लोकेशन के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी नोड्यूल, आपको एक सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। फिर जब भी आप सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल को डिफाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये अपर जोन के अपर लोब्स के अंदर आ रहा है या लोअर लोब्स। जो मेलिग्नेंसी होती है या मेटास्टेसिस होता है वो फेवर करता है लोअर जोन्स को, लोअर लोब्स को, क्योंकि लोअर लोब्स के अंदर परफ्यूजन अच्छी होती है, ठीक है। अपर जोन्स के अंदर, अपर लोब्स के अंदर अगर कोई सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल्स आ रहा है तो उसका जो साइज, इसका ना साइज का एक चार्ट बड़ा अच्छा दिया हुआ है लेकिन वो मुझे हर दफा ही भूल जाता है। जो अपर जोन का साइज है ना उसमें फिर मार्जिन है अप टू 1 सेंटीमीटर का, लेकिन अगर लोअर जोन्स के अंदर 5 mm का भी है तो दैट्स सिग्निफिकेंट। फिर उसकी आप इंटरवल ग्रोथ देखते हैं। इसमें जो बेसिकली डिफरेंस दिखाया गया है ना वो मार्जिन का ही दिखाया गया है कि जो आपकी लेफ्ट साइड पर आ रहा है वो बहुत वेल डिफाइंड है, उसकी कोई स्पेकुलेटेड मार्जिन नहीं है, और जो राइट साइड पे इमेज में दिखाया गया है उसके स्पेकुलेटेड मार्जिन यानी स्पिक्यूल्स रेडिएट कर रहे हैं इससे ना, तो इसको कोरोना रेडिएटा साइन कहते हैं, ठीक है। कोरोना रेडिएटा साइन क्या होता है कि जो न्यूमरस स्ट्रैंड्स रेडिएट कर रहे हैं फ्रॉम द नोड्यूल इनटू द सराउंडिंग लंग पैरेन्काइमा।
और एक और साइन होता है, अगर प्लूरल बेस्ड मैस हो, प्लूरल से ओरिजिनेट कर रहा हो, तो उसके एक प्लूरल टेल आपको नजर आती है, जिस तरह से आपको मेनिंजियोमा के केसेस में ड्यूरल टेल नजर आती है। ठीक है, ये नेक्स्ट इमेज में फिर एक सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल दिखाया गया। इसकी मैं इमेज भी या मैं शेयर कर दूंगी या कोई ग्रुप पे शेयर कर दे। इसका एक चार्ट है जो आप सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल को फॉलो अप करते हैं कि कितना क्लोज आपने फॉलो अप रखना है, कितने सेंटीमीटर का लीजन हो, अपर लोब में आ रहा है या लोअर में आ रहा है तो फिर कैसे फॉलो अप करना है। फिर रिस्क सर्टिफिकेशन होती है कि पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है। ठीक है, अब लंग कार्सिनोमा को हम डिस्कस करते हैं, जो मेन आज का हमारा टॉपिक है। हमें पता है कि लंग कार्सिनोमा के लिए जो अदर ऑल्टरनेटिवली टर्म यूज की जाती है वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, क्योंकि ज्यादातर लंग कैंसर जो है वो ब्रोंकोस से ओरिजिनेट करता है। ब्रोंकोजेनिक की फिर आगे से यानी लंग सीए की आगे से दो फर्दर बड़ी टाइप्स हैं, स्मॉल सेल है और नॉन स्मॉल सेल है। ठीक है, जो नॉन स्मॉल सेल्स हैं उसकी आगे से चार फर्दर टाइप्स हैं, एडिनो कार्सिनोमास, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास, लार्ज सेल्स, और आगे हैं अनडिफरेंशिएटेड यानी नॉन स्मॉल सेल्स कार्सिनोमास। ठीक है, इनको हम वन बाय वन इमेजेस के साथ डिस्कस करेंगे। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास यूजुअली जो होते हैं ना स्मोकर्स के अंदर, स्मोकिंग की ज्यादा एसोसिएशन स्क्वेमस सेल के साथ भी है और स्मॉल सेल के साथ भी है। तो स्क्वेमस सेल सेंट्रल लियंस होते हैं, स्मोकर्स के अंदर होते हैं, और कैविटेटिंग लियन है, यानी अगर आपके पास एक कैविटी आ रही है थिक वॉल तो उसकी डीडी में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी आएगा, और ज्यादातर सेंट्रल होते हैं। एडिनो कार्सिनोमास जो है वो पेरिफेरल लोकेशन में ज्यादा होते हैं, यानी अगर आपके पास एक नॉन रिजॉल्विंग कंसोलिडेशन है दैट कैन बी एडिनो कार्सिनोमा। 6 वीक्स हो गए हैं एंटीबायोटिक्स के साथ, वो रिजॉल्व नहीं हुई कंसोलिडेशन। और एडिनो कार्सिनोमास की एक बात है कि इसका जो पैटर्न होता है लिपिडिक ग्रोथ का, यानी जिस तरह किडनी के अंदर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा लंग वो किडनी के पेल्विक एलिशियस सिस्टम की शेप एज्यूम कर लेता है ना, इसी तरह एडिनो कार्सिनोमास भी लंग के स्ट्रोमा को यूज करते हुए बिल्कुल जैसे एक लोबार कंसोलिडेशन के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है। फिर नेक्स्ट जो है वो लार्ज सेल कार्सिनोमास है, अप टू 4 सेंटीमीटर लीजन्स होते हैं, ये भी स्मोकर्स के अंदर है होते हैं और पेरिफेरली लोकेटेड है। स्मॉल सेल्स हैं जिसके अंदर जो आपके ज्यादातर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेंगे। अब जो मेटास्टेसिस का पोटेंशियल है ना वो सबसे ज्यादा स्मॉल सेल के लियंस में होता है। स्मॉल सेल फिर एडिनो में, उसके बाद लार्ज में और एंड में स्क्वेमस। ठीक है, अच्छा, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा खुद भी कैविटेट करते हैं और जो इसके साथ नोड्स आ रहे होते हैं ना उनमें भी कैविटेशन होती है। अच्छा, आगे टीएनएम है। मेरा ये एम है कि हम जो भी यूनिट करें उसकी साथ हम टीएनएम भी याद कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट सीए हैं उसके, और साथ हम ट्रॉमा की ग्रेडिंग भी याद कर लिया करें। तो टीएनएम में बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट ने बताना ये होता है कि लीजन रिसेक्टेबल है या नॉन रिसेक्टेबल है। जो T1 एंड T2 लीजन्स है ना वो रिसेक्टेबल लीजन्स है, और जो T3 T4 है वो इररिसेक्टेबल लीजन्स है। ठीक है, अब इसमें टी में हम पता है ट्यूमर बल्क या ट्यूमर साइज बताते हैं। अगर लियन का साइज रफली 1 to 3 सेंटीमीटर, और ये इसमें ना ABC को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप मोटा मोटा ही याद करें कि 1 to 3 सेंटीमीटर है तो T1 है, 3 to 5 सेंटीमीटर है तो T2 है, 5 to 7 है ग्रेटेस्ट डायमेंशन में। अच्छा, 1 और जो T2 है ना इसके अंदर लंग के अंदर कन्फाइंड है या विजरल प्लूरा इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन केराइना से डिस्टेंस जो है वो मोर देन 2 सेंटीमीटर है। जो T3 है 5 to 7 सेंटीमीटर है ट्यूमर ग्रेटेस्ट डायमेंशन में, और उसने इन्वॉल्व कर लिया चेस्ट वॉल को, पेरिकार्डियम को, या फिर फिरेनिक नर्व पैरालिसिस हो गया है। अच्छा, और T4 जो है वो लियन का साइज मोर देन 7 सेंटीमीटर है और उसने ग्रेट वेसल्स को, हार्ट को, या फिर केराइना को इन्वॉल्व कर लिया। और जब हम नोडल क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें N1 में सेम साइड्स का पेरीब्रोंकल, हाइलर या इंट्रापल्मोनरी नोड, और N2 के अंदर मीडियास्टाइनल या सबकेराइनल नोड्स, और N3 के अंदर आप कॉन्ट्रालेटरल मीडियास्टाइनल या कॉन्ट्रालेटरल हायरल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट बताते हैं, या फिर कॉन्ट्रालेटर स्केलेनी और या सुप्राक्लेविकुलर नोड्स। और एम में हमें पता है कि हम डिस्टेंट मेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स का सिंगल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए या फिर मल्टीपल एक्स्ट्राथोरेसिक मेटास्टेसिस की साइट। अच्छा, जब भी आपने लंग के सीटी पे कमेंट करना है तो जो विजुअलाइज्ड एब्डोमेन आपको नजर आ रहा होता है उसमें आप लिवर के अंदर और एड्रीनल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर कमेंट जरूर किया करें। अगर बोन विंडो नहीं भी प्रोवाइडेड तो इन दो पे। और जब भी आप कोई सीटी देख रहे होते हैं तो सबसे पहले प्लीज स्कैनोग्राम देखा करें अगर आपको चेस्ट एक्स-रे प्रोवाइडेड नहीं है, क्योंकि स्कैनो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट मैं एक सीटी दिखा रही हूँ, तो कैंडिडेट हैंड रेज करे जिसने प्रेजेंट करना है और इसकी टीएनएम बतानी है। जी डॉक्टर अंबर। Okay, I am provided with the CT chest of multiple axial slices in mediastinal and lung window, where I can appreciate thick wall enhancing lesion involving the right
sided chest, predominantly pleura and mid-lower zones. It is also having a component of pleural effusion. Hilar and subcarinal lymph nodes are also appreciated on the ipsilateral side. Contralateral side appears unremarkable, no significant nodule, opacity, consolidation, collapse appreciated within the contralateral lung. I cannot appreciate any significant pathology within the visualized bony skeleton. Based on these findings, अभी नहीं, अभी कंक्लूड नहीं करें, ग्रेट वेसल्स के साथ और हार्ट के साथ इंटरफेस बताएं. yes, it is involving, it is causing mediastinal shift and invading right main pulmonary artery हाँ जी. and also some part of right atrium. ठीक है, बट अबाउट राइट ब्रोंकस, ब्रोंकस भी इन्वॉल्व है ना, T4 हुआ, ठीक है, एक ट्यूब भी आ रही है, उसको भी मेंशन कर दें. मैडम एक क्वेश्चन है जी जी. मैम, इसमें कैंसर जो मलिग्नेंट ट्यूमर है यानी खुद लंग कैंसर में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है ना कि कोलैप्स, कंसोलिडेशन और कैंसर दोनों साथ पड़े हुए होते हैं, तो उन्हें भी डिफरेंशिएट करना होता है. अब कैंसर वो है ऊपर जो फर्स्ट सेक्शन में मार्जिनल रिब्स के साथ साथ जा रहा है पेरिफेरल, या जो मीडियली भी सारा कुछ घुस रहा है अंदर वो भी ट्यूमर है? आप ना मीडियास्टाइनल विंडोज देखें इसकी जो अबव वाली हैं, ठीक है, साथ नोड्स भी मिक्स हुए हुए हैं, कुछ लो डेंसिटी, ठीक है, मैस इटसेल्फ भी समवट नेक्रोटिक है, और जहां पर पड़ी हुई है ना चेस्ट ट्यूब, उसने ज्यादातर कंपोनेंट ऑफ प्लूरल एफ्यूजन को ड्रेन कर दिया है. ठीक है, तो मैस ही है सब कुछ ज्यादातर. इट्स लार्ज मैस है जी, इट्स लार्ज मैस है. आप देखें चेस्ट वॉल भी इन्वेडेड है. चेस्ट वॉल भी इन्वेडेड है, बिल्कुल रिब्स लग रही है, रिब के बीच में मसल्स में भी जा रहा है ऑब्लिक. ठीक है मैम, और थैंक यू. बोन पे कमेंट आप लोग ना किया करें, आप लोग कहा करें बोन विंडो देखेंगे. ठीक है, ठीक है. हाँ, अगर बहुत ऑब्वियस डिस्ट्रक्शन नजर आ रही है तो फिर कमेंट किया जाए. ये क्लार्ज, ये लोकली अग्रेसिव मैलिग्नेंसी है, ठीक है. प्रॉपर हम टी स्टेजिंग तो इसकी बता देंगे, नोड्स भी बता सकते हैं, लेकिन एम स्टेजिंग के लिए हम फर्दर एब्डोमेन और बाकी जो है वो सॉफ्ट टिश्यू विंडो पे लिवर और एड्रीनल्स को देखना चाहेंगे, ठीक है. मैडम ये T4N2 बनेगा MX. हाँ जी, इस इन सिलेक्टेड इमेजेस के, एक मिनट सॉरी, इन सिलेक्टेड इमेजेस के ऊपर N2 बनेगा ना. ये हाइलर भी है और सब केराइनल भी नोड्स आ रहे हैं. जी, थैंक यू. केराइना देखिए ना, सब केराइनल भी नोड्स आ रहे हैं. जी, नेक्स्ट. जी. सर ये भी डॉक्टर ले खदीजा. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. I'm provided with X-ray chest of a skeletally mature patient. I can appreciate that there is an opacity in the right upper lung zone. It is well-defined homogeneous opacity. There is possible collapse of upper lung zone. There's a concavity. Concavity with the superior part of the lung zone, making a golden S sign. I cannot appreciate any calcification within this lesion. I cannot appreciate any overlying rib erosion. The rest of the lung fields appear normal. The hilum is also normal. Left lung and the cardiac and mediastinal contours are unremarkable. Considering the findings, the top differential would be of left upper lobe mass with collapse of the underlying lung. आपने कहा हाइलम नॉर्मल है, तो हाइलम का ही तो मैस है राइट साइड पे. जो नीचे opacity आ रही है राइट लोअर लंग में, वो हाइलम नहीं है. अच्छा, आप मुझे बताएं कि गोल्डन एस बनता कैसे है. जी ठीक है, हाइलर मास के साथ ही हाइलर मास है, डिस्टल कोलैप्स हो जाएगा लंग का. मतलब क्या है, ओपेसिटी आ रही है ना, एक आप इस तरह से डिस्क्राइब करें, एक ओपेसिटी आ रही है राइट अपर जोन में, ठीक है, और जो ट्रांसवर्स फिशर है इट्स डेविएटेड भी है ट्रांसवर्स फिशर, और मैंने बताया था ना कि नॉर्मल लोकेशन फोर्थ एंटीरियर रिब के साथ होती है, तो ये अपवर्ड मूव कर गया है. जब भी लंग फिशर अपवर्ड मूव करता है तो ये डायरेक्ट साइन किस चीज का होता है, लंग कोलैप्स का.
जी, मैं एक बात पूछना चाहिए while describing, मैं इसकी जो शेप है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन आप इलेबोरेट कर देंगे किस तरह से इसकी बोलेंगे? डिस्क्रिप्शन हम ये एलेबोरेट करेंगे कि ओपेक आ रहा है राइट अपर जोन, ठीक है, और जो ट्रांसवर्स फिशर है इट्स अपवर्ड डेविएटेड, जो उसका मीडियल पार्ट है उसके अंदर एक कन्वेक्स बल्ज आ रहा है, ठीक है। Convex ठीक, bulge is located in the medial part of the displaced horizontal fissure, which shows the presence of mass at the hilar region. ओके ओके, थैंक यू। पल्स देता है जो रिवर्स साइन ऑफ गोल्डन बनता है, ठीक है। जी तो जी, ठीक। लॉस ऑफ एरिएशन ऑफ लंग एक साइन हो गया, ठीक है। दूसरा आपने डिस्क्राइब ये भी करना है कि जो अपर रिब्स है उनकी क्राउडिंग हुई हुई है, ठीक है। ये ठीक है, मेरा कोलैप्स हो एग्जाम जाएगा। था, मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि एग्जाम की आप वो दिखाया करें, तो बिल्कुल सिंपल इसी तरह की बहुत बेसिक्स फिल्म्स भी होती हैं, ठीक है। ये था एग्जाम में उन्होंने दिखाया, तो शी वाज एक्सपेक्टिंग मी टू डिस्क्राइब द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट साइंस ऑफ लंग कोलैप्स। तो क्या क्या होते हैं? डॉक्टर नस्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, अब आ रही है? हेलो। जी, जी जी, आवाज आ रही है आपकी मैडम। हाँ जी हाँ जी, तो आप मुझे बताएं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइंस ऑफ लंग कोलैप्स क्या होते हैं? डायरेक्ट साइन के अंदर एक तो ओपेसिटी आ जाती है, और साथ में क्राउडिंग ऑफ रिब्स हो जाती है, और साथ क्राउडिंग ऑफ रिब में डायरेक्ट साइन नहीं है, इनडायरेक्ट है। ओके लॉस ऑफ डायरेक्ट साइन। एरिएशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिशर्स है, ठीक है, जी, क्राउडिंग ऑफ वेसल्स है, ठीक है। ठीक है। और जो इनडायरेक्ट साइंस है उसके अंदर आता है क्राउडिंग ऑफ रिब्स, एलिवेशन हाइपर, ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन ऑफ डायफ्राम, या फिर एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ हाइलम, ठीक है। जी ठीक है। तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? लॉस ऑफ एरिएशन भी हुई हुई है, क्राउडिंग ऑफ रिब्स भी हुई हुई है, और फिशर भी अप मूव किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे इसको ब्रोंकोस्कोपी के साथ और सीटी चेस्ट विद कंट्रास्ट के साथ, ठीक है। ओके, और जब भी मैस को डिस्क्राइब करना है तो डूम ऑफ डायफ्राम का भी जरूर बताना है आप लोगों ने कि एलिवेटेड है या नहीं, क्योंकि मैस इटसेल्फ भी तो पैरालिसिस कराता है ना फेरेनिक नर्व की, ठीक है। और लंग मैस ठीक के है। साथ प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर लंग मैस के साथ इफ्यूजन आ रही है तो इट्स मैलिग्नेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज, बट समटाइम ये देखा गया है कि सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स में भी बन जाती है प्लूरल इफ्यूजन। जी, केस 2। यस डॉक्टर असलम। Sir, जी सर, ये केस X-ray, X-ray chest frontal projection of skeletally mature male patient. There is a well-defined opacity in the right mid-lung zone in the along the paramediastinum, having acute angle with the mediastinum keeping in the intrapulmonary location. There is no evidence of calcification or cavitation in this lesion. The margins of the lesions are fuzzy, and this lesion, the ribs adjacent to the lesions are not involved. CP angles are clear. However, the right CP angle is mildly hazy. Cardiac contour is of normal size. There is a well-defined opacity in the right lower zone in the medial location. Left lung is clear. However, both the hila are enlarged, bulky. Keeping in view, this is a pulmonary mass lesion with ill-defined borders. So next, I will go for the CT scan of the chest, CT chest with contrast. ठीक है, ये लें सीटी। Axial CT of the same patient shows soft tissue density lesion in the upper lobe anterior segment, shows soft tissue density. There is no evidence of calcification or cavitation. It's adjacent. It is, however, compressing the vessel. Margins are well defined. However, it is involving anteriorly, involving the anterior
cyst wall and vessel. It is causing medial displacement of the vessel with compression, and there is also some. ये जो मार्क क्या है, ये आपने क्या है, वैसे ऐसे या वैसे? सर जो मार्क किया हुआ है इसमें ये मैस है, और एस जो लिखा हुआ है दैट्स एसवीसी, और हाँ, आप देखेंगे प्री ट्रेकियल SVC लोकेशंस के अंदर भी compression है. नोट्स आ रहे हैं This जी is a central mass. Central mass. So this is a small cell carcinoma, small cell, maybe small cell carcinoma मे बी with स्मॉल सेल, ठीक है, ज्यादातर स्मॉल सेल भी स्क्वेमस ही निकलते हैं। तो squamous मतलब एक cells. मैस आ रहा है, एग्रेसिव है, जो उसकी इंटरफेस जो है वो एसपीसी के साथ इनडिस्टिंक्ट है, कंप्रेशन है एसपीसी के ऊपर, और मेनोबियम स्टर्नाई के साथ भी इंटरफेस इनडिस्टिंक्ट है, तो इरोजन लगती है। ठीक है, इट कैन बी आल्सो डिफरेंशियल्स में आप मेटास्टेटिक डिपॉजिट भी डाल सकते हैं विद So the stage of the tumor is T4. जी However, I will look for the other images and sections in the coronal and sagittal to look for the other lobes for the further categorization of the lesion and staging of the mass. ठीक है जब And इस this तरह का image मैच is T4. जी जब It is minimum stage of the tumor is T3, because whenever the chest wall, perineal nerve and that is involved, so it is T3 at least. पहले आपने मैडम इसमें जी बोले। मैम इसमें एक्सरे पे प्योरली इंट्रापल्मोनरी कह सकते थे, क्योंकि पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लीजन भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, एक्सरे के ऊपर एक्सरे ऑल्दो इसका बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सरे के ऊपर वाकई इसकी जो लोकेशन है वो पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल लग रही है, क्योंकि ये मीडियास्टाइनम के साथ ऐसा लग रहा तो था ऐसे ही मैडम फ्लोनोमा और एंगल बना रहा है। न्यूरोफाइब्रोमास नजर आती हैं, डंबल Hey, शेप। madam, there is a lung जो है ना, lung ये एरेशन है, और इसका जो एंगल बन रहा है वो शार्प बन रहा है, acute एंगल बना रहा है। इट इज अ पल्मोनरी, और स्प्लेन भी नहीं है पोस्टीरियर रिब्स के, स्प्लेन भी नहीं है, और इंटीरियर अगर इसको बनाएंगे तो इंटीरियरली इसका वो जो है ना उसको इंटरफेस नहीं कर रहा है, तो सुपीरियर वेना केवा को और हार्ड बॉर्डर को ये इंटरफेस जो है ना ये इंटैक्ट है, तो इसलिए ये इंट्रापल्मोनरी, और साथ इसके साथ ये नॉड्यूल आ रहा है, अनदर नॉड्यूल इन द राइट लंग लवर, इसमें एक नॉड्यूल और आ रहा है, ये हाइपरटेंस नॉड्यूल आ रहा है इसमें, तो ये और प्लस इसका ये हैजी है, ये जो राइट सीपी एंगल है ये हैजी है, तो अगर ये इसको भी हम कंसिडर करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे इसका, या जो सीटी हुआ है उसकी गाइडेड इसकी प्लूरल इफ्यूजन और सेटोलॉजी करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आया तो ये स्टेज M1A में चला जाएगा। और इस इमेज के ऊपर ये सिलेक्ट नहीं कर रहा कार्डिक बॉर्डर को, इसमें नहीं कर रहा है। डॉक्टर असमान, मैडम इसके ऊपर कॉन्ट्रालैटरल जो हाइलम है वो नॉर्मल है, लेफ्ट हाइलम। इस इमेज पर तो ऑल्दो ये बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों हाइलम जो है ना बल्कि है, किया हुआ था नोट्स की वजह से बल्कि है, दोनों हाइलम बल्कि है। ठीक है बाकी हम मैडम सीटी के ऊपर भी थोड़ा ये जो पेरियोटिक सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग है, एनहांसमेंट भी है, इसको कैसे डिफाइन किया जाए? सेक्शन वाली भी एक अपैरेंट आ रही है। देखिए सिंगल इमेज के ऊपर आपने कभी भी कमेंट नहीं करना किसी भी उसके ऊपर, ठीक है? अगर आप मल्टीपल इमेज जी एक्सरे ये है इसका। मैडम इसके एक्सरे पे एक्यूट और ऑब्ट्यूज मार्क कर देंगे, क्योंकि इस पे तो मैम ऑब्ट्यूज एंगल ही लग रहे हैं इसके। नहीं ये शार्प एंगल बन रहे हैं भाई साहब, इसकी ना मीडियल और ऊपर से लेटरल मार्क दोनों करो, मार्जिन्स, ऊपर से डी डालो ना, इसको ऊपर से डी मीडियल एंड लेटरल दोनों मार्जिन्स इसके डिस्टिंक्ट लग रहे हैं। देखिए इंटरफेस इसकी ये सिलेक्ट नहीं कर रहा कार्डिक बॉर्डर को, इंटैक्ट है। अगर आप इसको जूम करके देखें तो इट्स नॉट सिलेक्टिंग द कार्डिक बॉर्डर, आपको इंटरफेस अच्छी डिस्टिंक्ट अप्रिशिएट हो रही है। राउंडेड है ना, राउंडेड है, वो जो है ना अगर मीडियास्टिनल इसको बनाएंगे तो वो जो है ना ब्रॉड बेस्ड होगा टुवर्ड द मीडियास्टिनम, ये आप विल डिपेंड राउंडेड है। असलम भाई, आपने एक बात कही थी ना जी कि ये इसका जो मार्जिन्स हैं वो फजी हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये जो उसमें
ये आप जी। ये जो है ना, जो एक्सरे वाली है ना, एक्सरे वाली आप इसको इमेज को देखो तो ये जो नीचे इसके फजी लाइंस आ रहे हैं, देखो ना, ये नीचे आप जो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीजन देखो तो दे आर नॉट वो तो क्लियर। इसमें लंग पेरेन्काइमा डिस्प्लेस किया हुआ है ना, ये वो वाली वो वेस्कुलेचर और पेरेन्काइमल लाइंस है। अदरवाइज अगर आप इसका लेटरल बाउंड्री देखें तो इट इज वेल वो क्लियर डिफाइंड, है, हाउएवर वो द क्लियर है, मीडियल लेकिन बाउंड्री। नीचे इंफीरियर बॉर्डर जिसके जो है ना एल डिपेंड है मैडम। अच्छा चलिए, ठीक है, सही है। डॉक्टर नसमा, आप कोई कमेंट करेंगे इस बात पे? मतलब क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, इसी चीज पे आपको वो कर लेते हैं ना, जी ये बिल्कुल, कौन अगर सा मैं मैडम इस इसमें लीजन को मेरा पॉइंट डिस्क्राइब व्यू ये है करूंगी, कि चूंकि ये मेन्यूब्रियम से, आई हैव सीन सच ए केस इन माय रेजिडेंसी एक दफा, चूंकि ये मेन्यूब्रियम और एंटीरियर मीडियास्टिनम को भी सिलहट कर रहा है एक्चुअल में सीटी पे, एंटीरियर जी जी मीडियास्टिनम में तो जा रहा है, तो इसलिए ये मीडियास्टिनल फीचर्स भी दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने कहा सीटी के ऊपर आप डिफरेंशियल्स के अंदर आप मेटास्टेटिक डिपॉजिट भी डाल सकते हैं विद इंट्राथोरेसिक कंपोनेंट, ठीक है। चेस्ट के अंदर ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो लियन की अप्रोच और डिफरेंशियल्स हैं। चेस्ट के अंदर डेफिनेटिव डायग्नोसिस बहुत कम केसेस का है, सही है। हमने लियन को डिस्क्राइब किया, उसके मार्जिन्स को डिस्क्राइब किया और अपनी डिस्क्रिप्शन को जस्टिफाई किया, और किन किन स्ट्रक्चर्स को वो इन्वॉल्व कर रहा है। इस लियन को अगर मैं डिफाइन करूं तो यही बताऊंगी कि राइट मिडल जोन के अंदर एक वेल डिफाइंड लियन अप्रिशिएट हो रहा है जिसके मीडियल और लेटरल दोनों मार्जिन्स डिस्टिंक्ट हैं एंड इट्स नॉट सिलेटिंग द कार्डिक बॉर्डर। और मुझे इस अपीयरेंस डायग्नोसिस तो पे ये एक्यूट बायोप्सी पे ही एंगल ही, होगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो बायोप्सी पे ही प्रूव होगा, क्योंकि ये सारी ठीक है की सारी मैम, टाइप्स बेसिकली की मीडियल बायोप्सी मार्जिन भी होती देखना हैं। है। जी नेक्स्ट केस। डॉक्टर वकार। I am provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient, in which I can appreciate that there is a left apical region opacity. Left apical region opacity is noted with erosion of adjacent ribs and also clavicle. With erosion of clavicle and adjacent ribs. No internal calcification or any fluid levels noted. Soft tissues appear unremarkable. ठीक है, सुपीरियर मार्जिन अप्रिशिएट हो रहा है आपको? जी जी मैडम। मैम क्या क्वेश्चन है आपका? सुपीरियर मार्जिन अप्रिशिएट ठीक लग रही है? मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, नहीं सुपीरियर मैम, मार्जिन आपको ओपेसिटी का अप्रिशिएट हो रहा है? नो नो ठीक लग रही है? नो मैम सर, नो मैम, सुपीरियर मार्जिन उसका अप्रिशिएट नहीं हो रहा, वो दैट इज मर्जिंग विद द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द नेक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन नहीं है कोई डेफिनेट, बाकी लंग ठीक है, नॉर्मल लग रहा है। जी जी मैम, ठीक रेस्ट है, ऑफ द लंग्स एंड cardiothoracic ratio and CP angles are unremarkable. Based on my imaging findings and and the aggressive nature of the lesion, it's some malignant mass. Next, I would like to do a cross-sectional imaging and biopsy. ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग है। केस सेम है लेकिन पेशेंट डिफरेंट है। जी मैम। I am provided with the CT scan axial and coronal images in mediastinal and lung windows, in which I can appreciate there is heterogeneously enhancing right apical region lobulated. The lesion has speculated margins and it is causing erosion of the ribs and the vertebrae. Actually, it's जी जी vertebrae.
अब वो मैम स्टर्नम से कंफ्यूज हो रहा था, जैसे स्टर्नम नहीं वर्टिब्रल बॉडी है। वर्टिब्रल बॉडी ही है जी मैम, जी। इरोजन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज, no other metastatic lesion is noted in the lung fields. Liver, spleen and visualized adrenal glands are unremarkable. ठीक है, ठीक है, Ma'am, सही। the visualized vasculature is unremarkable. ठीक है, नहीं मैम डाउटफुल है राइट साइड पर मैम, वैसे पोस्टीरियरली नहीं पड़ा फैट हुआ, प्लेन मैथ तो प्रिजर्व, पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है ना। फैट प्लेन प्रिजर्व है, फैट प्लेन प्रिजर्व मैम, एक्सियल में एक जगह पे डाउट था लेकिन वो फैट प्लेन प्रिजर्व्ड है उसका। ठीक है, सारे इमेजेस देखे ना, ये तो पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है ना, वही है एओर्टा से। जी जी मैम। ठीक है, स्मॉल सेल्स है, ठीक है, स्पोर्ट सेल भी कहते हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स के साथ ज्यादा प्रेजेंट करते हैं, और इसमें आपको अगर एंटीरियरली पड़ा हुआ मैस तो एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन देखनी चाहिए, और उसका जो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में या फिर एंटीरियर चेस्ट वॉल में आपको कोलेट्रल्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो वो समटाइम बहुत कंट्रास्ट पे लागे स्ट्रक्चर्स आपको अप्रिशिएट हो रहे होते हैं, या अगर एब्डोमेन दिखाते हैं तो उसके ऊपर हॉट क्वाड्रेट लूप साइन भी आ सकता है एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन का। तो Next. मैडम ये पेनकोस ट्यूमर था? जी सर, पेनकोस ट्यूमर है। मैडम जो पेनकोस ट्यूमर होते हैं वो स्क्वेमस सेल होते हैं, इसलिए उसका एसवीसी का ऑब्स्ट्रक्शन वाला कम होता है। वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो सेंट्रल होता है, और उसके साथ एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन और कोलेटरल फॉर्मेशन और अम्बिलिकल वेन का जो है ना वो दोबारा खुलना जो है ना वो होता है उसके साथ। इसके साथ नहीं होते ये पेनकोस्ट है। इसके साथ ये जो एक्सिलरी और ब्रेकियल जो वेजल्स है ना ये इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। ये देखो, इसके लिए हम फर्दर जो है ना एमआर लाजमी करेंगे। ये देखो इसमें मैडम दोनों जो है ना इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये जो कहाँ नजर आ रहे हैं? ये देखे मैडम, ये सेकंड जो है एक्सियल इमेज, उसमें डाउट था मुझे जो राइट मैडम साइड पर। सेकंड इमेज जो है इस पे देखो, ये जो वेजल्स निकल रहे हैं ना दोनों इंटीरियरली फ्रॉम द मेस, तो मेस उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसा ही है, ये वाला ठीक कह रहे हैं डाउटफुल आप। था ये। तो इसमें सबक्लेविन वेजल्स को ही देखना है ना, सबक्लेविन आर्टरी और वेन दोनों ये जो आगे पीछे पड़े हैं ना इसको इन्वॉल्व क्या है। तो ये आपको जो है ना एमआरआई या अल्ट्रासाउंड पे दो मोडेलिटी है जिसपे आप इसको देख सकते हैं, और न्यूरोवास्कुलर बंडल को। और आप कब कहते हैं कि इररिसेक्टेबल है, अगर ब्रेकियल प्लेक्सस की कौन सी ट्रंक इन्वॉल्व हो तो? ये तो बेसिकली ये बेसिकली T8 and above T4 होता है, T1 T2 जो है वो T3 नहीं मैडम, जब भी पेनकोस्ट बोलेंगे तो एटलीस्ट जो हमारी कैटेगरी होती है वो T3 होती है। और T4 में अपग्रेड करने के लिए इसकी ये मॉडेलिटी करेंगे, तो अगर न्यूरोवास्कुलर बंडल और ग्रेट वेजल्स इन्वॉल्व है तो फिर ये T4 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर असलम, आपका बहुत अच्छा आपने बताया। T3 के लिए मस्ट है CPP, चेस्ट वॉल, प्रीनिक नर्व और पेरिकार्डियम, CPP, चेस्ट वॉल, फेरेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियम। ठीक, हाँ ये तीनों, ये जो है ना आप जब भी पेनकोस्ट बनाओगे तो इसने ऑलरेडी चेस्ट वॉल को इन्वॉल्व किया होता है। हम जब इसको डिस्क्राइब भी करते हैं तो हम कहते हैं रिब को इन्वॉल्व किया है, स्केपुला को इन्वॉल्व किया है, या जो है ना इस चेस्ट वॉल को। जब तक इन्वॉल्व ना करे ये तो फिर हम जो है ना, तो ये ऑलरेडी इसने इन्वॉल्व किया, तो एटलीस्ट मिनिमम कैटेगरी इसकी T3 होती है। अपग्रेड करने के लिए हम इसका जो है ना वो फर्दर जो है ना MRI कराएंगे और इसके अगले जो है ना सेक्शंस देखेंगे। प्लेक्सिस की इन्वॉल्वमेंट के लिए एमआर मस्ट कराएंगे। यही है ना मैडम, यही जो वेजल्स देखते हैं, ये जो आगे पड़े हैं वेजल्स और न्यूरोवास्कुलर बंडल, उसी को बंडल कहते हैं ना। इसमें वो एक क्लिनिकली होता है माइटोसिस और मियोसिस और एनहाइड्रोसिस, वो ऑर्नर सिंड्रोम जो है वो भी इसके साथ वही इसी के साथ टिपिकली ली जाती है। अच्छा, इसको ना स्पीरियर सल्कस ट्यूमर भी कहते हैं, लेकिन स्पीरियर सल्कस तो कोई टर्म नहीं है एनाटॉमी में अगर देखा जाए तो। बेसिकली ये एक मिसनोमर है। आई डोंट नो कि ये स्पीरियर सल्कस क्यों अब इसका नाम रख दिया कि स्पीरियर सल्कस ट्यूमर है ये, लेकिन अगर देखें तो ये यही लिखा है कि ये कोई मिसनोमर है। ये कोई स्पीरियर सल्कस, कोई एनाटॉमी वाइज तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसमें हम कहें कि ये स्पीरियर सल्कस है। अगर कोई और इसमें जो एग्जामिनर्स हैं वो इस लफ्ज को बहुत पसंद करते हैं, सुपीरियर सल्कस ट्यूमर कह देना तो दे लाइक इट। लेकिन सुपीरियर सल्कस कोई नाम नहीं है असलम भाई। नहीं है बट दे लाइक इट। मेरी मैडम खुद बहुत पसंद करती थी इस लफ्ज को। जी चलिए।
ठीक है, अगर इस इमेज में हम पहला इमेज देखें ना, तो उसमें देखा जा सकता है कि इसकी एक्स्ट्रा थोरेसिक भी एक्सटेंशन है एक्सिलरी सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर। जी जी मैडम। जी, नेक्स्ट। मैडम इसमें क्वेश्चन था कि फिर हम जनरल टर्म यूज करें कि मैलिग्नेंट लीजन लग रही है या डायरेक्ट पैनकोस्ट बोल दें? ऑनेस्टली आई प्रेफर टू से कि एग्रेसिव। इसमें मैडम जो चेस्ट है डॉक्टर साहब आप क्या डिस्क्राइब बना कर रहे रहे हैं? थे ना, जी जी। जो चेस्ट इसके हमें दिखाई जाती है ना, तो जो वो कहते हैं कि इसको पसंद किया जाता है कि इसको कह दो कि एपिकल थिकनिंग है या एपिकल जो है ना वो ओपेसिटी है, उसको ओपेसिटी आगे है जी। लेके जाओ, बस इसको जी फिर आगे ठीक, ले जाओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि जी, अगर अब कैपिंग का है तो कैपिंग इसमें नहीं बोलते, क्योंकि एपिकल कैपिंग जो है ना उसके साथ एआर्टिक डाइजेक्शन के साथ आती है ना। कैपिंग नॉर्मल भी हो सकती है एल्डरली पेशेंट्स में, स्मोकिंग से रिलेटेड, और यूजुअली बायलेटरल होती है। ओके, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट। डॉक्टर अकीला सादिका मैडम, ये केस ले लें। Assalamualaikum. वालेकुम। Extra chest frontal projection of an adult patient. I can see a large, ill-defined opacity silhouetting the left heart border partially and extending up to the chest wall. It has indistinct superior and inferior margins. I cannot appreciate any rib destruction on this image. Soft tissues along the chest wall are relatively thick as compared to the right side, which are suspicious for extrathoracic extension. And CP angle is minimally blunt on the left side and clear on the right side. The left upper zone and the contralateral hemithorax appear grossly unremarkable. Right hilum is also normal. Heart is shifted more towards the left side as well, which suggests some element of volume loss on the left side as well. And generally, the volume of the left lung is also appearing smaller as compared to the left side. Okay, now to conclude my findings, the appearances would favor an aggressive process. The differential will lie between a malignant and infective process, and in my routine practice, I will suggest CT test with contrast for further evaluation and to see the extent of disease. ठीक है, बेसिकली इसमें एक ओपेसिटी आ रही है विद एयर ब्रोंकोग्राम्स। ठीक है, पेरिफेरल लोकेशन में है, हेमिथोरेक्स जो है लेफ्ट साइड का उसकी वॉल्यूम रिडक्शन है, और ये काफी वीक्स हो गए, रिजॉल्व नहीं कर रही है कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कैसे अच्छा लेके ब्रोंकोग्राम से मुझे नहीं अप्रिशिएट हो रहा है इस पे, बट एनीवेज अगर है तो फिर हम इसको लेंगे कि अगर नॉन रिजॉल्विंग कंसोलिडेशन की DD में आएगा और इसमें पेशेंट इज एल्डरली, आई मीन मोर देन 50 years so, तो पहली चीज तो हम ब्रोंकियल कार्सिनोमा ही रखते हैं, और या ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया भी हो सकता है, पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। और फर्दर के लिए फिर भी वही क्रॉस सेक्शन ही होगी और बायोप्सी पे ही डिसाइड होगा कि ठीक है, ये इसकी the क्रॉस underlying सेक्शन इमेज है। pathology के लिए at least. Okay. These are selected axial images through post-contrast CT chest with the mediastinal and lung windows. I can see a large soft tissue mass which has ये दो different है, right and left side पर कार्य. जी हाँ जी, Okay, if लास्ट वाला I'm looking on the extreme साइड right वो image डिफरेंट first, इमेज है। which is mediastinal window. Sorry?
डिफरेंट पेशेंट है ना, हाँ, क्योंकि साइड डिफरेंट आ रही है। उसमें एक ओके, साइन अब मैं दिखाया हुआ है राइट को बस। डिस्क्राइब करी तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू है, लार्ज हैज वेसल्स को इनकेस किया हुआ है इसने कंप्लीटली, जो इंट्रापल्मोनरी वेसल्स हैं, ब्रांचेस हैं and not much enhancing, बस minimal से enhancement ये show कर रहा है। Low density mass है on the right side और and I think there is some extrathoracic involvement posteriorly. Fat planes are obliterated with the extrathoracic compartment और bone window I would see in my routine practice confirm bony in the mid image it shows a low density left side which is also showing intramass cells which are in case no extension of the mass seen in the extrathoracic compartment and the mediastinal was broadly there unremarkable. The fat plane between the descending aorta and this mass is slightly obliterated, but it is, I think, less than 90 the angle placement and the or the third mass on the left side CT image shows a large area of ground glass, large area of ground glass opacity involving almost whole of the left hemisphorix in the visualized section at least, and it is involving अब एयर ब्रोंकोग्राम there is नजर आ रहा है? some area of normal lung in between as well, and a few areas of bronchogram. The volume is reduced. जी print system जैसा है। Okay, तो this is the same case जो हमने पहले देखा था एक्सरे के ऊपर। जी नहीं, ये भी नहीं है, ये तो लेफ्ट साइड पर है है ना सीटी का बट ये जो सॉफ्ट टिश्यू मैसेज है जो इधर मीडियास्टल में आपने दिखाया। ठीक है, टाइप होती है Sorry, एडिनोकार्सिनोमा की, जो मैंने बताया लिपिडिक ग्रोथ होती है, बिल्कुल लंग की शेप एज्यूम कर लेता है, तो एक ये नॉन रिजॉल्विंग कंसोलिडेशन का डिफरेंशियल आ जाता है। इसको एंजियोग्राफी पे या फिर कंट्रास्ट एनहेंसिटी पे कंफर्म करते हैं आप कि एक जैसे आपने बताया कि लो डेंसिटी मैस है विद वास्कुलर एनकेसमेंट। जी नेक्स्ट डॉक्टर साकिब, डॉक्टर साकिब, डॉक्टर इरम, X-ray chest frontal projection of an adult patient showing there is miliary shadowing involving both lung fields scattered. These opacities are very tiny. No evidence of any calcification. Bilateral CP angles are clear. Bilateral hemidiaphragms are clear. ठीक है, Trachea is central. Visualized bones appears unremarkable. My provisional diagnosis is miliary metastasis. अच्छा व्हाट एल्स? जब भी आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना चेस्ट एक्सरे को, तो मैंने बताया था आपने बताना है ओपेसिटी एल्वेलर लगती है आपको, एयर स्पेस की लगती है या फिर आपको इंटरस्टिशियम की लग रही है, ठीक है। और अगर आपने मिलरी शेडोइंग बोल दिया तो इसका डेफिनेटली मतलब ही यही है कि 0.5 mm से लेके 2 mm तक की, देन आपको दोबारा टाइनी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलरी शेडोइंग आ रही है बायलेटरल लंग फील्ड में विदाउट एनी जोनल प्रेडिलेक्शन, कोई इसके अंदर कैल्सिफिकेशन अप्रिशिएट नहीं हो रही, साथ सेप्टल थिकनिंग है, ठीक है। lymphangitis carcinomatosis.
फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है लिम्फेडेनाइटिस कार्सिनोमाटोसिस, सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये ब्रोंकोएल्वुलर कार्सिनोमा है, क्योंकि वो भी मिलरी पैटर्न के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर नॉन हिस्ट्री मैडम कोई इसमें लेफ्ट लंग अपर जोन में ऐसे भी लग रहा है जैसे सिस्टिक एरियाज हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वो मिलरी शेडोइंग के दरमियान वाला जो लंग है ना, उसकी अपीयरेंस इस तरह से आ रही है। ठीक है। बाकी हार्ड बॉडी मेलिरे के लिए मेडल वो डिस्क्रीट होते हैं, उसके लिए लफज है डिस्क्रीट 1 to 3 mm होते हैं और मार्टलिंग होती है। इसमें आप देखो ये सारे एक दूसरे के साथ कोलिस कर रहे हैं, रेटिकुलोनाडुलर और सिस्टिक अपीयरेंसेस हैं। बायलेटरल अपर लंग फील्ड्स में जो है लंग जोन में सिस्टिक अपीयरेंस है और नीचे जो है ना रेटिकुलोनाडुलर अपीयरेंस है। डिफ्यूज है, सस्पिशियस है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, और दोनों को हम लेके चलेंगे। HRCT चेस्ट इसमें कराएंगे। जब भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि कोई एग्रेसिव पैथोलॉजी, एग्रेसिव या इन्फेक्टिव, देन नॉट HRCT, देन CT चेस्ट आफ्टर CT चेस्ट उसके लिए ठीक है। बस मिलरी पैटर्न को बेसिकली डिस्क्राइब करना है हमने, और इमेसिएटेड पेशेंट लगता है दोनों केसेस में इसमें हो सकता फर्दर है। हम CT चेस्ट कंट्रास्ट करवाएंगे। जी, इसमें तो मैम सिस्टिक एरिया ज्यादा लग रहे हैं, राइट लेफ्ट अपर मिडल एंड लोअर लोब्स में, हो सकता है और कि राइट पे कोलोनोमा भी के साथ वही पेशेंट को चीज आ रही ILD है। भी चल रही हो, लेकिन ये ब्रोंकोएल्वुलर कार्सिनोमा का केस है और ये इसका CT है। ठीक है, कौन डिस्क्राइब कर रहा था इसको? CT चेस्ट डॉक्टर नस्मा, मेरे दो क्वेश्चन है। जी जी जी। एक प्रीवियस केस पे और एक इस पे तो हम अभी टॉपिक हमारा डिफाइंड है कि जी हम लंग CA ही कर रहे हैं, तो बट मैं उसको एग्जाम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसा जो पिछला केस था उसमें जो DD मेरी इन्फेक्टिव प्रोसेस की और मलिग्नेंट की या एग्रेसिव जो लग रहा था, इज इट द राइट वे या हमें किस तरह से इसको डिस्क्राइब करना चाहिए? एक तो ये चीज पूछनी है। दूसरा, ये जो अभी हम केस ये देख रहे हैं मिलरी वाला, इसमें तो ये तो आपका पास हिस्टोपैथ का डायग्नोसिस है कि ये ब्रोंकोएल्वुलर था, बट इन अदरवाइज एक जनरल में जब आपको ये लगता है तो आपको कौन सा डिफरेंशियल देने चाहिए एंड हाउ टू प्रोसीड? इन दो चीजों को जरा एक्सप्लेन कर दें। मैं मिलरी पैटर्न को डिस्क्राइब करूंगी, मैं जोनल प्रेडिलेक्शन की बात करूंगी कि नहीं है, ठीक है, होमोजेनसली है, कुछ जो है वो डिस्क्रीट है और कुछ जो है आपस में कोलेस कर रही हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगी कि कैल्सिफिकेशंस नहीं है। अगर मैं कैल्सिफिकेशन नहीं है कहती तो मैं एल्वेलर माइक्रोलिथियासिस को रूल आउट कर देती हूँ। 3 हमारे पास चीजें चल रही हैं, ब्रोंकोएल्वुलर कार्सिनोमा है, ठीक है, मिलरी पैटर्न का दूसरा हेमेटोजेनस जो है वो मिलरी TB है, और थर्ड हमारे पास एल्वेलर माइक्रोलिथियासिस है। जब हमने कह दिया कि कैल्सिफिकेशंस नहीं है और कार्डिक बॉर्डर क्लियर है तो एल्वेलर माइक्रोलिथियासिस तो रूल आउट हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि ये डिस्क्रीट नहीं है और ये आपस में ज्वाइन कर रही है, जो TB की ओपेसिटीज बिल्कुल होती सही। करती हैं, ठीक है। हाँ, मिलरी के लिए तो हम डिस्क्रीट ही को ही मिलरी कहते हैं ना, अदरवाइज तो हम मिलरी नहीं उसको यूज करते हैं, ऐसे ही है ना? मिडली पैटर्न में दोनों मिडली पैटर्न में बेसिकली हम साइज डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। 0.5 से लेके 2 mm का जो साइज है वो मिलरी पैटर्न है। डॉक्टर नस्मा, एक जी सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट। तो मुझे ना ये मतलब मिलरी से थोड़ी बड़ी शेडोइंग लगती है, रेटिकुलोनोडुलर टाइप, मतलब नोडुलर प्रीडोमिनेंटली बोल लें, लेकिन मिलरी से थोड़ी बड़ी है, लाइक हाँ, इट्स नोडुलर शेड। रेटिकुलर नोडुलर चले हम ज्यादा अच्छा इसका वो बर्ड डिस्क्राइब कर लेते हैं, बिकॉज CT है उसमें भी रेटिकुलर नोडुलर ही शेडोइंग लग रही है। बिल्कुल, अब CT पे भी देखेंगे ना तो इसके जो नोड्यूल्स है ना वो बड़े बड़े हैं काफी। बड़े बड़े हैं जी, मिलरी से ठीक बड़ा है, सा। बिकॉज मिलरी के साथ तो डिफरेंशियल में आई थिंक ब्रोंकोएल्वुलर शुरू में तो नहीं आता मेरे दिमाग में, एटलीस्ट पहले ब्रोंकोएल्वुलर नहीं आएगा। हेमाटोजेनस मेट्स में और लाइक ट्यूबरकुलोसिस या एंडोब्रोंकियल स्प्रेड ऑफ सॉरी हेमाटोजेनस कोई भी जो एग्रेसिव इन्फेक्शन है उसको डालेंगे। ब्रोंकोएल्वुलर मेरे ख्याल में तीसरे चौथे नंबर पे जाके डालूंगी मैं, अगर बहुत ही ज्यादा करूँ तो। नहीं, इसलिए एग्जाम मैं में पूछ रही हूँ कि हाउ टू डिफरेंशियल कन्विंस कि यूजुअली जी नहीं मांगते ब्रोंकोएल्वुलर में हैं। क्यों बोलूँ इसको? आप डिस्क्राइब कर दें, बता दें रेटिकुलर नोडुलर पैटर्न है, नोड्यूल्स की अपीयरेंस कैसी है और कैल्सिफिकेशंस नहीं है, सो दैट्स फाइन। अच्छा, एग्जाम में जो है ना मैडम ऐसे होता है डिफरेंशियल कि काउंट होते हैं और आपके अप्रोच काउंट होती है। एग्जामिनर्स ये नहीं चाहते पिन पॉइंट डायग्नोसिस डायग्नोसिस, नहीं। वो हमेशा इस पे खुश होते हैं आपके डिफरेंशियल्स और वो, और इसी पे मतलब इस दफा मुझे काफी मार्जिन मिला था। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ
इस केस पे कोई बंदा ये नहीं बता सकता एक्सरे को देख के बता कि सकता। ट्यूबुलर कार्सिनोमा है। आपने डिफरेंशियल्स देने, इफेक्टिव बिल्कुल को सही देना है। है, न्यूप्लास्टिक देना है और अप्रोच पे चलना है, बस आपने। बिल्कुल बिल्कुल कि नोड्यूल को भी जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम बताते हैं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से है, साइज क्या है, मार्जिन्स कैसे हैं, ये डिस्क्राइब करना है जस्ट। जी ठीक है, थैंक यू। जी मैडम ये मैं ले लेता हूँ। चेस्ट एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ ए मैच्योर मेल पेशेंट। I can see multiple well-defined rounded opacities scattered throughout the both lungs field. Bilateral hilas are unremarkable. Bilateral CP angles are sharp. Cardiac size normal. Trachea central. This is a male patient, and I can unable to appreciate any cavitatory or any calcification to see inside the lesion, and there is no pneumothorax, and soft tissues are unremarkable. तो मैडम ये बेसिकली कैनन बॉल अपीयरेंस है, मल्टीपल मेड्स हैं। इसके लिए जो है हमें अब प्राइमरी देखना पड़ेगा। अगर प्राइमरी हमें पता हो, इसमें मोस्टली जो रीनल सेल कार्सिनोमा, थायराइड की मैग्नेंसी, अगर फीमेल पेशेंट हो तो उसमें ऐसी ये ब्रेस्ट की मैग्नेंसी, और अगर ये नीमोथोरक्स के साथ हो तो फिर हम ऑस्टियोसार्कोमा के मेड्स की इसमें तो इस फर्दर हम केस में आपने कहा कि कैल्सिफिकेशन नहीं है, कैविटेशन नहीं है, तो फिर क्या लग रहा है कि कहाँ के मेड्स होंगे? थायराइड के तो ना हुए ना फिर? यस ऑस्टियोसार्कोमा के भी ना हुए, आरसीसी यस, के भी ना हुए। और ये है मेल पेशेंट। जी मैडम इसकी वर्टिब्रल बॉडी, प्रोस्टेट की हो सकती है मेड्स? प्रोस्टेट के हो सकते हैं। वर्टिब्रल बॉडी में भी ये स्क्लेरोटिक मेट्स नहीं है। वर्टिब्रल बॉडीज पीए व्यू पर इतनी अच्छी नजर नहीं आती हैं। लास्ट 2 देखें आप। टेस्टिस की हो और अगर सकती है। बॉडीज में जाते हैं मेड्स या कहीं और जाते हैं? पोस्टीरियर एलिमेंट्स में आते हैं ना ज्यादा, जी तो या स्पाइन्स गायब होंगे या पेडिकल्स गायब होंगे। जी मैडम। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अपेरेंस है हम इसको बस डिस्क्राइब कर देंगे। आपने बहुत अच्छा कहा कि कैल्सिफिकेशन अप्रिशिएट नहीं हो रही है, कैविटेशन नहीं है, मेल पेशेंट है तो प्रोस्टेटिक हो सकते हैं। यही अगर कैल्सिफिकेशंस आ रही होती तो साथ अगर आपको नेक पर भी कमेंट करना चाहिए कि थायराइड के अंदर कोई लीगन इस तरह से नहीं नजर आ रहा, कोई लीगन हमें नेक से चेस्ट में नहीं नजर आ रहा आता हुआ। जी 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 मैडम। थायराइड में भी लीगन होता है और फिर लंग में भी मेट्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम फिल्म्स के अंदर यूजुअली मैंने ये देखा है 2 से 3 फाइंडिंग्स होती हैं। मेन फाइंडिंग्स आपको नजर आ जाती हैं, उसके बाद जो एडिशनल आपके पॉइंट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स पकड़ने के होते हैं, और एग्जामिनर ज्यादा इंटरेस्टेड होता है एक्स्ट्रा फाइंडिंग सुनने में। यस मैडम, थैंक यू। जी, ये एक और केस है, इसके अंदर कुछ कैल्सिफिकेशंस अप्रिशिएट हो रही हैं, ये भी मल्टीपल मेटास्टेसिस हैं। जी नेक्स्ट। डॉक्टर अंबर। जी सर, I am provided with spot images of CT chest with contrast, coronal and zoomed image of CT angio, in which I can appreciate on the plain film I can see calcification within the ascending and descending aorta, and I can appreciate subcarinal lesion. सबके राइनल, सब राइट ब्रोंकस इंटरमीडियस है ना? सॉरी, हाँ, राइट ब्रोंकस इंटरमीडियस के अंदर, सॉरी, यस मैडम, lesion within the right bronchus intermedius, and on the second film I can also appreciate the lesion. It is well defined, rounded, enhancing. मोस्ट कॉमन क्या होते हैं? Bronchial carcinoid. कार्सिनॉइड्स, ठीक है। कैसे प्रेजेंट करते हैं? नेडम कार्सिनोइड सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, फीचर्स पे पेरिनियोप्लास्टिक। तो ये प्रेजेंट करेगा सिंड्रोम के साथ? लेस लाइकली है, क्योंकि इनकी बहुत सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आगे पेटेंट है। नहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, आप लिवर देखें।
लिवर ठीक है, इसमें कोई मेटास्टेसिस तो नहीं लग रही। मेटास्टेसिस नहीं है, ठीक है। जब लिवर में मेट्स नहीं हो तो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। फिर ये जो है ना पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करते, कार्सिनोइड सिंड्रोम्स के साथ, ठीक है। अगर लिवर में भी मेट्स हो तो फिर सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करते हैं। मैडम ये जो केराइना के नीचे ये एक एनहेंसिंग सा एरिया आ रहा है, ये क्या है? डिसेंडिंग अयोर्टा से ऊपर ये एट्रियम का पार्शियल आ रहा है, हार्ट का? मैडम ये लिवर और ये डिसेंडिंग अयोर्टा और ये इस लीजन के नीचे ये जो एक एरिया आ रहा है, ये डिसेंडिंग एओर्टा का पार्शियल वॉल्यूम है, उससे आगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का पार्शियल वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। जी नेक्स्ट। जी डॉक्टर खतीजा। I'm provided with CT scan axial images of a patient, soft tissue and mediastinal and lung window. I can appreciate that there is a soft tissue density lesion in the. Dr. Asma, आप थोड़ा सा zoom कर सकते हैं इसको? Left side. जी, thank you. I can appreciate that there's a soft tissue density lesion in. Can you describe कर देना पहले? एक राइट साइड वाली राइट अपर लोन में सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी आ रही है और फिर लेफ्ट साइड में भी आ रही है, लेफ्ट मिड लंग जोन में, लेफ्ट मिड लंग जोन में भी आ रही सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी. इट इज हैविंग irregular margins and it appears to involve the right left pulmonary artery as well. There is subtle enhancement of this lesion as well. I cannot appreciate any calcification. In the lung window, I can appreciate that it contains air as well, cavitating lesion है. ठीक है. Or the lesion is central, so the top differential would be of cavitating is small cell squamous cell carcinoma of the lung. जी ठीक है. लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को इन्वेट किया हुआ है, उसके साथ इंडिस्टिंक्ट इंटरफेस है और एविडेंस ऑफ कोलैप्स आ रहा है. वॉल्यूम रिडक्शन है ना. अब जब भी सीटी देखें तो स्कैनोग्राम पे सबसे पहले कमेंट किया करें, उससे आपको बहुत सारी फाइंडिंग्स पता चल जाती हैं कि वॉल्यूम रिडक्शन है लेफ्ट साइडेड हेमीथोरेक्स की. ठीक है, ठीक है. मैडम इसमें जो जी सर. मैस था ये बायलैटरल जो अपर जोन है उधर भी है और लेफ्ट मिडल लोब में भी मैडम. जी सर, लार्ज एक लीजन है, लेफ्ट साइड वाला तो एक ही लीजन लग रहा है. जी. बाकी इसकी कॉर्नल इमेजेस देखेंगे तो ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा. राइट साइड पर मुझे कोई ऐसा लीजन अप्रिशिएट नहीं हुआ. पोस्टीरियर थोड़ी सी प्लूरल थिकनिंग आ रही है एपाइकल उसमें. बायलैटरल अपर सेगमेंट ठीक है मैडम इसमें. जो यही ना जो लेफ्ट साइड पर है ना, वो तो एक ही लार्ज मैस लगता है, कैविटेशन है उसके अंदर मल्टीपल. और जो राइट साइड की लंग एपेक्स है ना, उसमें मुझे पोस्टीरियरली थिकनिंग लगती है प्लूरा की. जी ठीक है. लंग विंडो पे क्लियर था ना नीचे, और लंग विंडो पे क्लियर है. ऊपर सॉफ्ट टिश्यू विंडो कंफ्यूजिंग है, नीचे क्लियर है. नेक्स्ट. डॉक्टर असलम जी आप ले लें. X-ray chest frontal projection of a male patient shows opacity in the right mid lung zone in the perihilar location. It is well defined and it is abutting medially with the right hilar vessels. There is no calcification or cavitation in it. Hila is prominent. Left hilum is unremarkable. Cardiac shadow is within normal limits and no other pulmonary nodule is appreciated. CP angles are clear.
ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? This is next we will go for the one is endobronchial ultrasound, EBUS and biopsy or CT chest with contrast for the characterization of the ठीक है, lesion. सीटी चेस्ट विद कंट्रास्ट करा लेते हैं, लेकिन अगर मैस एंडोब्रोंकियल हो तो देयर शुड बी सम एविडेंस ऑफ लंग कोलैप्स। Yes, वो तो नहीं है मैडम, ये तो इंट्रापल्मोनरी। सीटी है पेशेंट का। Axial images, CT chest with contrast. There is well-defined soft tissue density lesion and the right anterior segment of the right upper lobe. It is well-defined, and in the lung window. जी। Yes, madam, I am looking at the lesions margins. In the lung window, the margins are slightly speculated. ठीक है। However, it has no evidence of calcification, and on the soft tissue window, no significant lymphadenopathy is seen. No pleural effusion. ठीक है। Anterior chest wall is unremarkable. It is abutting the anterior chest wall. However, मीडियस्टाइनल विंडो पे एंटीरियर चेस्ट वॉल से बहुत दूर है। उससे दूर है, लेकिन लंग विंडो में मैडम ये टच कर रहा है। जी ठीक है। ये इसको ना करें, ठीक है। सही, तो चलिए एग्रेसिव पेरीहाइलर मैस एक है, ठीक है। फर्दर आप इसको मैडम जो है ना, आप इसकी साइज लेंगे और इसको सिटी गाइडेड बायोप्सी से बायोप्सी करेंगे। जी। हिस्टोपैथोलॉजिकल असेसमेंट एंड डेफिनेट डायग्नोसिस। ठीक है, कैसे करेंगे बायोप्सी इसकी? इसका सिटी गाइडेड करेंगे। इसका जो है ना मैडम, इसको तो सुपाइन से करेंगे, ठीक है। क्योंकि और ये जो है ना, पिछले टॉक्स में दिखाया भी था कि एक नीडल इसके अंदर जा रहा था और एक नीडल साइड पे पड़ा था, कि कौन सा करेक्ट पोजीशन है, याद होगा आप? जी 22 गेज की कोर कट नीडल यूज करते हैं। हाँ, तो एक उसके लीजन जो है ना वो नाड्यूल के अंदर गया था, वो राइट में था, और जो ऊपर पड़ा था सर, तो वो इनकरेक्ट था। तो वही उसका जो है ना नीडल इसकी पेरिफेरी ऑफ लियन से बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। और आपने कमेंट करना होता है, अगर मैस बहुत वास्कुलर है तो आप नहीं लेंगे बायोप्सी। दूसरा ये कि जहां आपसे आपने बायोप्सी लेनी है, नीडल को ऑलमोस्ट उस जगह के 2 सेंटीमीटर पीछे रखते हैं, बिकॉज जब आप नीडल फायर करते हैं तो वो आगे मूव करती है, ठीक है। इसमें मैडम इस केस में तो हम सिटी गाइडेड या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड ले लेंगे ना, चेस्ट की तरफ से, सामने से। जी सर। अच्छा, ये सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ कि कैसे डिसाइड करना होता है कि इंटीरियर बायोप्सी लेनी है या पोस्टीरियरली? ये डॉक्टर साहब इस तरह करते हैं कि आप इस लीजन को देखो कि ये एंटीरियर चेस्ट वॉल के साथ करीब पड़ रहा है, या देखो आप पीछे से आओगे, अगर इसको आप प्रोन करोगे और पीछे से इसको नीडल लोगे तो ये कितना ज्यादा फासिला है। नहीं, तो इसमें क्राइटेरिया होता है एक प्रॉपर ना, मतलब आपने सिर्फ ये नहीं डिसाइड करना कि करीब है या क्या है। फिशर के एंटीरियर लियन है तो आपने एंटीरियर करनी है बायोप्सी, फिशर के पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर करनी है। एग्जैक्ट, ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर नज़मा, इसमें ये सेकेंड लास्ट लाइन के फर्स्ट इमेज में एक इंटरनल डेंसिटी आ रही है, इज इट फैट डेंसिटी या ये कार्सिनोमा ही है? ये हेमाटोमा तो नहीं बन रहा कोई इस इमेज में? जी ये जो इसमें थोड़ा सा स्पेक ऑफ ईयर आ रहा है, हाँ, कैविटी, वो स्पेक ऑफ एयर भी लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटीरियर वॉल्यूम एवरेजिंग भी हो सकता है ना मैडम, ये बाकी में नहीं है ना। हाँ जी, बाकी किसी इमेज में नहीं है। और ये नहीं मुझे एवरेजिंग पता कि प्रायर कोई इंटरवेंशन की पेशेंट की हिस्ट्री है या नहीं, क्योंकि चेस्ट वॉल में तो ऐसा कोई इंटरवेंशन नहीं लगता। अच्छा मैडम, वो बता दें कि वो नीडल कौन सा वाला सही है, वो जो लीजन के अंदर था सेंटर में वो सही था, या जो साइड पे पड़ा था वो सही था? पेरिफेरी में बी वाला राइट था।
जी वो पिछले ग्रुप में तो सब ने वो सेंटर वाले को यस किया था। नहीं, डॉक्टर नजम का केस था वो, डॉक्टर नजम ने कहा था कि पेरिफेरी ऑफ लीजन से बायोप्सी लेनी। नहीं भाई, याद है ना वो वाला? मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी सर। ये पिछले टॉक्स अच्छा, में इसमें ना जी हाँ इसमें सर, डिफरेंट और ओपिनियंस थे। मार्क करना। जी डॉक्टर डॉक्टर नजम का जो अपना ओपिनियन था ना, उन्होंने कहा था कि पेरिफेरी ऑफ लियन से लेना होता है क्योंकि सेंटर में नेक्रोटिक कंपोनेंट होता है। ये उनका पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन उसके अलावा मैंने जितने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को वो भेज के कंफर्म किया था, सबने सेंटर कहा था। तो इसीलिए दोबारा आए तो चूंकि पता है कि ये डॉक्टर नजम का केस है, तो आप पेरिफेरल लगाएं बी उसको। लगाना है। जी ये जबरदस्त सर, जबर, वेल डन सर। चले, ये सर, प्रोबेबली डॉक्टर लास्ट इकसाम, केस है। उसके अंदर ना सर जो केस आया था डॉक्टर ना हमें इकसाम, टॉक्स के अंदर, सर ये क्या कैसे जी डिसाइड जी कर सर। रहे हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर रहे हैं या सीटी गाइडेड करें? अल्ट्रासाउंड गाइडेड सर आपने उस टाइम करनी है बायोप्सी जब वो बिल्कुल चेस्ट वॉल में पड़ा हुआ मैस। अगर मैस और चेस्ट वॉल के बीच में थोड़ा सा भी लंग का पार्ट आ रहा है तो आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड नहीं करनी। ठीक ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ठीक है, ये प्रोबेबली लास्ट केस है। ओके मैडम मैडम मैंने ये एक सवाल करने हैं जो इस दफा एग्जाम में पूछे थे। जी मैडम मैं इस दफा ना, मुझे एग्जाम में उन्होंने एक सैडल एम्बुलेंस का केस लगाया था, जो आपने सबसे पहले हमें चेस्ट की प्रेजेंटेशन दिखाई थी ना, तो बिल्कुल आपका टिपिकल केस था, वही वाला उनका केस था। वो सारी एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे डॉक्टर अनीसुर रहमान जो थे शौकत खानम वाले, उन्होंने पूछा कि हम सीटी पल्मोनरी एनजीओ पे यानी सीटी पे हम राइट हार्ट स्ट्रेन के क्या साइंस देखते हैं। राइट हेड स्ट्रेन के क्या साइंस देखते हैं? हाँ, जो ये हम लोग जो कमेंट करते थे ना, वो इस पे कमेंट करते थे कि जब आप कंट्रास्ट देते थे तो जो कंट्रास्ट की डेंसिटी का जो डिफरेंस है ना, उससे उससे अंदाजा लगाते थे, या फिर चैम्बर की एनलार्जमेंट से। मैडम इसमें तो वो 3 क्राइटेरियाज नहीं होते सीटी राइट हार्ट स्ट्रेन के, कि मैडम राइट एट्रियल enlargement होती है, आईवीसी डायलेटेड होती है और रिफ्लक्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट विद इन द हेपेटिक वेन्स है। हाँ, वो पैसिव हेपेटिक कंजेशन के साइंस है ना ये। गोइंग ऑफ जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी तो क्या देख तो कि वो आपकी लेफ्ट साइड पे जा रहा है। इसको हम सीवीएस वाले यूनिट में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। वो ईसीजी पे आते हैं मैडम, S1Q3 T3 इस तरह का वो ये मैंने सीक्वेंस उनको आता है। कहा था, मैंने अल्ट्रासाउंड में बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा मुझे इस सिटी की फिल्म पे बताओ। नहीं डॉक्टर नस्मा, ये सीटी पर ही होता है जो राइट हार्ट स्ट्रेन में क्रॉनिक एम्बोलिज्म में ये उसमें देखना होता है। ये क्राइटेरिया है बिल्कुल वेल डिफाइंड। इसमें जहाँ तक मैंने सुना पड़ा है वो मैं बता देती हूँ कि एक तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसकी बोइंग या स्ट्रेटनिंग होती है, और एपिकल फॉर्मेशन हमें पता है कि नॉर्मली एपिक्स जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, बट इन केस ऑफ राइट हार्ट स्ट्रेन वो एपिकलाइजेशन भी जो होती है वो राइट वेंट्रिकल से होती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसके अलावा वही साइज की डायलेटेशन की वो क्राइटेरिया भी है कि कंपैरेटिव हम देखते हैं दोनों की राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज। वो डेनहार्ट में भी लिखा हुआ है क्रॉनिक एम्बोलिज्म में ना 45-35 इस तरह का कुछ डिफरेंस है दोनों का। सही, तो इसको हम लेकिन डिटेल में ना जो है ना हार्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर जी लेंगे। ठीक ठीक है, या फिर ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। अभी ये लास्ट फिल्म है, इसको डिस्क्राइब कर लें। जी, एनीवन? डॉक्टर वकार आप ले लें। I'm provided with the CT scanner and axial CT images, mediastinal and pulmonary window. In scanner, I can appreciate bilateral. I can appreciate bilateral hilar bulky. Cardio-mediastinal ratio seems normal, but no pleural effusion. In CT's axial images, I can appreciate there is a left posterior mediastinal mass. There is a left posterior mediastinal mass in the left posterior mediastinal mass abutting the descending aorta. The mass is irregular and with
speculated margins. With speculated margins. बेसिकली पोस्टीरियर सेगमेंट एपिको पोस्टीरियर जी, सेगमेंट और मैं लिंगुलर सेगमेंट में आ रहा है ना, लेफ्ट लोब, लेफ्ट लंग के एक मैस आ रहा है पोस्टीरियरली सबप्लूरल लोकेशन में, डिसेंडिंग एओर्टा के साथ उसकी इंटरफेस इनडिस्टिंक्ट है, स्पेकुलेटेड मार्जिन्स है। जी मैडम बिल्कुल ठीक है मैम। however there is no rib erosion appreciated, no other nodule noted in the rest of the lung parenchyma, and मैम लास्ट रो में डाउट पड़ता है जैसे, लेकिन इमेज थोड़े छोटे हैं उसमें मैम कमेंट करना थोड़ा मुश्किल ही है कि बोन के मैम लास्ट रो प्लीज। जी 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 ठीक है, सॉलिटरी लीजन लग रहा है। जी मैम सॉलिटरी लीजन ही है, और मैम नहीं, नो रिब इरोजन नोटेड, एंड however it is abutting the posterior chest wall. ठीक है Ma'am, based on imaging findings, and the lesion is most likely some malignant lesion. ठीक है Ma'am, next ठीक है, मैम लेकिन इसका पता बायोप्सी है जैसे कोरिलेशन नेक्स्ट मैम। आप बाकी इमेजेस अवेलेबल देखेंगे, एड्रिनल्स पे कमेंट करेंगे, लिवर पे कमेंट जी करेंगे। मैम, ठीक, जी मैम वो नेक्स्ट ये लास्ट है। मैडम मैं ये ले जी लेता वही हूँ। जी 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 सर। जी जी बकार। जी सर आप लें सर। Okay, this is the CT scan, chest, axial slices, both mediastinal and the lung window. And on scano, there is a opacity in the left hila that is abutting with the cardiac on the right side, and the chest wall on the lateral aspect. So on the CT scan, there is a soft tissue density mass lesion that is abutting anteriorly with the anterior chest wall, and medially with the supracardiac vessels. And this is a triangular shape opacity, and I am unable to see any calcification or area of necrotic component in it, and bilateral hila are unremarkable. On lung window, I can see some reticular changes on bilateral side of the bilateral lung fields, and however, the soft tissues are unremarkable, and for metastasis in the bones, I can see on a bone window. तो मैम ये सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मैस लीजन है जो कि लेफ्ट लिंगुलर लोब को जिसने इन्वॉल्व किया हुआ है, मोस्ट लाइकली मैलिग्नेंट लीजन। और इसके जी जो जी तो फर्दर मैडम इसकी कैरेक्टराइजेशन के लिए हम इसकी बायोप्सी करेंगे और फर्दर जो है स्टेजिंग करेंगे सिटी चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस के साथ। ठीक है, और इसमें एक साइन भी आ रहा है लेफ्ट ब्रोंकस का, ब्रोंकस कट ऑफ साइन आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगुलर ओपेसिटी नजर आ रही है, ये इस इमेज में देखें। जी जी मैडम, जी जी बिल्कुल कट ऑफ साइन आ रहा है, प्लेस नहीं हो रही। ठीक है, यानी एक ट्रायंगुलर ओपेसिटी हमें नजर आ रही है स्कैनो के ऊपर लेफ्ट मिडल जोन में। तो हमें पता है कि अगर राइट साइड पे ट्रायंगुलर ओपेसिटी नजर आए और राइट हार्ट बॉर्डर क्लियर ना हो तो वो राइट मिडल लोब का कोलैप्स या कंसोलिडेशन होती है, और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे ट्रायंगुलर ओपेसिटी आ रही हो तो लिंगुलर की कंसोलिडेशन या उसका कोलैप्स होता है। ठीक है, तो यानी एक हमें कंसोलिडेशन स्कैनो पे अप्रिशिएट हुई, जो हमने जिसको आगे देखा तो वो एक सॉफ्ट टिश्यू मैस निकला विद ब्रोंकस कट ऑफ साइन। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। बाकी सारे इमेजेस से रिलेटेड कि एक इरेगुलर हेटेरोजेनस सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मैस है लिंगुलर सेगमेंट ऑफ लेफ्ट अपर लोब में,
और ऑब्लिटरेट कर रहा है वो ब्रोंकस को, गिविंग ब्रोंकस का टॉप साइन। स्पेक ऑफ कैल्सिफिकेशंस है उसके अंदर, और बाकी उसकी इंटरफेस बताई गई है डिफरेंट उसके साथ। और फर्दर इमेजिंग के ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी नोड्यूल्स भी हैं बायलेटरल लंग फील्ड्स में, जो हमने मिस कर दिए हैं। ये जी, तो ये फिर लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस की तरफ मैडम ये शो हो रहा है। सेप्टल थिकनिंग तो मुझे अप्रिशिएट नहीं हुई, लेकिन पल्मन यानी लेफ्ट लंग का मैस है विद बायलेटरल पल्मोनरी मेटास्टेसिस। ठीक है मैडम, जज़ाकल्लाह मैडम। ठीक है, ये लास्ट थी हमारी स्लाइड। चलिए जी, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी मैडम इसमें आपने पेट सिटी के इमेजेस नहीं डाले, और उस पे थोड़ा सा, उस पे भी थोड़ी सी लाइट वो पड़ जाती तो अच्छा होता। सर एक्चुअली मुझे उनकी खुद भी बहुत अच्छी नहीं है, क्या कहते हैं, तो उसमें से फिर कुछ इमेजेस ढूंढ के मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो उस पे क्योंकि फिर हम दैट इज पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ना, पेट जी सिटी। जी जी जी, उसके फिर मैं कुछ इमेजेस ढूंढ के जो है वो शेयर कर दूंगी, तो फिर उसके ऊपर हम डिस्क्राइब कर लेंगे कि किस तरह से पेट सिटी को डिस्क्राइब करना है। या अगले क्लास में उसको 5-6 मिनट दे दें, कोई बात जी नहीं। चलें चलें, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट थैंक क्लास यू। में उसको शिफ्ट करके 4-6 उस पर डाल लें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बड़े मेहरबान। ठीक है, अल्लाह हाफिज।